Good evening, students. Yesterday we have started with new chapter, that is financial market. We have seen that financial market act as a link between the savers and the borrowers. If you want to invest in financial market, two options were available before you. Either you can go for money market or you could go for capital market. We have also seen that whenever the firm is in requirement of fund for very short period of time, usually till 1 year, then money market is one of the option available to them. We have seen various instruments that were available in money market. Now, every time it is not necessary that the funding requirement of the firm would be only for shorter period of time. They also require fund for longer period. जैसे अगर उनको expansion करना है और they have to go for diversification या फिर किसी कंपनी को उनको take over करना है और if they want to enter into some new projects, तो large amount of fund will be required by the organization. ये fund ये कहाँ से लाएगा? So for that, the option that is available for the firm is to raise fund with the help of second type of market, that is capital market. So what do you understand by capital market? Capital market refers to facility and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equities, are raised and investment. Whenever the fund is in requirement of medium term या long term fund, अगर उनको जरूरत होगी तो they could go for capital market by issuing of shares and debentures of the company. So it is a way where again the savings of the people can be put to more productive use. यानी इट इंडिकेट्स दैट अगर मेरे पास पैसा अवेलेबल है, आई एम दी सेवर, और अगर कोई कंपनी ने नया शेयर या मार्केट में लॉन्च किया हुआ है, इशू किया हुआ है, एंड इफ इट इज हैविंग अ गुड क्रेडिट रेटिंग, तो आई कैन इजिली पुट माई फंड इनटू दैट शेयर, परचेसिंग ऑफ दी शेयर्स. तो इससे क्या होगा, मेरा जो पैसा है उसका प्रोडक्टिव यूज शुरू होगा, बिकॉज जब भी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, जो मैंने फंड इन्वेस्ट किया है उसकी भी फेस वैल्यू बढ़ेगी. So here it helps the capital market, helps the savings to be channelized in a more productive use. Usually who are the participants under the capital market? The development bank, commercial bank and stock exchanges. इसके अलावा foreign investors, foreign direct investors, mutual fund, they are also the participants under the capital market as compared to that of the money market. This capital market is in turn divided into two types of market, that is primary market and secondary market. So basically what is the main difference between the capital market and the money market? First is in terms of participants. Usually capital market में कौन participate करता है, तो banks के अलावा जो बड़ी बड़ी organizations है जिनको long term funding चाहिए होगा, usually they are the main participants of the capital market. Whereas as far as the money market is concerned, the main participants of money markets are limited to banks and financial institutions. कैपिटल मार्केट में जनरल पब्लिक ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नो डाउट मनी मार्केट में भी जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है, बट यूजुअली दे डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन दी मनी मार्केट, दे यूजुअली गो फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल मार्केट. The second point of difference is in the capital and money market is in terms of instrument. That is, yesterday we have seen what are the various instruments available in money market. So they were call money, then commercial papers, then your treasury bills. So these were the instruments that were available for money market. But if you want to invest into capital market, then the options that are available before you is shares, debentures, bonds, mutual fund, public deposit. These are the options available if you want to invest into capital markets. As far as investment outlay is concerned, in capital market the investment outlay is very less. That is, अगर कोई शेयर की प्राइस जो भी होती है, इट इज केप्ट एट मिनिमम फ्रॉम ₹10 रेंजिंग टू ₹100. जो इनिशियल ऑफर्स होती है वो एक शेयर की प्राइस, जो इश्यू प्राइस होती है वो ₹10 से भी स्टार्ट हो सकती है. सो द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज वेरी लेस. तो अगर मुझे उस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदना होगा तो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी 1 लाख फॉर मी और इवन लेसर, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स आई वांट टू प्रिस्क्राइब. But as far as the money market is concerned, in money market the investment outlay is always more because it is meant for very shorter period of time. Similarly, as far as duration is concerned, capital market, whenever you require funding for medium or long term, capital market is one of the option. Whereas if you require fund only for 1 year of time or less than that, then money market is the option. As far as the liquidity is concerned, money market is said to be more liquid market as compared to that of capital market, because money market में usually जो भी buyers होते हैं, नए buyers हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ता है, they are readily available in the market. जैसे T-bills, अगर मुझे मेरे T-bills किसी और को बेचना है तो यूजुअली जो T-bills खरीदने वालों की कमी नहीं होती, बिकॉज इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, तो कोई भी वहां पे रिस्क नहीं होता, तो ये आसानी से आपको
बायर्स मिल सकते हैं। वेरेज एज फार एज कैपिटल मार्केट इज कंसर्न, जैसे अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और अगर वो शेयर्स को मुझे बेचना हो तो मुझे पहले तो जाके ढूंढना पड़ेगा कि वो शेयर्स कौन खरीदना चाहे, बिकॉज जरूरी नहीं है वॉट एवर शेयर्स आई हैव परचेज मेरा सामने वाले को उस कंपनी में इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पे रेडिली बायर्स आर नॉट अवेलेबल। सो इन दिस सेंस कैपिटल मार्केट में अगर आपको कैश में कन्वर्ट करना है आपको सिक्योरिटीज को, तो इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मनी मार्केट। From the safety perspective, again money market will be termed as the most safest market as compared to capital market. इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मेरा पैसा बहुत सेफ रखना है तो यूजुअली आई विल गो फॉर मनी मार्केट। यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता बिकॉज इश्यू करने वाला गवर्नमेंट या आरबीआई या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। जबकि व्हेन आई एम थिंकिंग फॉर इन्वेस्टिंग इनटू कैपिटल मार्केट, यानी अगर मैं शेयर में इन्वेस्ट करूं कंपनी के, तो शेयर्स आर इटसेल्फ दे आर हाईली वोलेटाइल। जो शेयर की प्राइस आज है जरूरी नहीं है कि वो सेम ही रहे, इट विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर अवेलेबल इन द मार्केट। सो कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल मार्केट एज फार एज सेफ्टी पैटर्न इज कंसर्न, it is more riskier as compared to that of money market. That is, safety will be more in the money market as compared to that of capital market. Similarly, expected return, लेकिन जब मैं रिटर्न के पॉइंट से देखूं, जहां रिस्क है वहीं पे ज्यादा रिटर्न है। So here the expected return in capital market will be more as compared to that of money market. Money market में rate of return will be much lesser. So to tune up, अगर मैं capital market की बात करूं, so the main features which is provided by capital market is serve as a link between the savers and the investors. अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कैपिटल मार्केट इज वन ऑफ द ऑप्शन। फिर कैपिटल मार्केट ही है जहां पे मोर इंटरमीडिएटरीज विल बी रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स या डिपॉजिटरीज की तरह। दे एक्ट एज अ वर्किंग ऑर्गन्स ऑफ द कैपिटल मार्केट when the capital formation is possible, because जितना ज्यादा कैपिटल मार्केट में पैसा जाएगा it will be helping in raising the capital fund for the organization, and it is operating freely. The capital market operates freely, लेकिन it works under certain government policies. That is, ये जो कैपिटल मार्केट है इनको सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अंडर में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत पे कैपिटल मार्केट को काम करना पड़ता है। सो दैट इज द आइडियल कैपिटल मार्केट। Now, earlier I spoke कि capital market is divided into two types of market. The very first type of market is the primary market and second type of market is the secondary market. Primary market as the name itself suggests, अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो नए शेयर्स को मार्केट में इश्यू करना चाहती है, तो whenever the shares are issued for the first time in the market, it is termed as primary market. यानी जिस मार्केट में शेयर पहली बार इश्यू होता है, भले वो नई कंपनी नए शेयर्स को लेके आ रही है या ओल्ड कंपनी नए शेयर्स को लेके आ रही है, सो यूजुअली कोई भी शेयर अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में इश्यू होता है तो दे आर ऑलवेज इश्यूड इनटू द प्राइमरी मार्केट. सो द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट. फिर एक बार जो भी शेयर्स आपने मार्केट में इश्यू कर दिया है, फिर अगर उसका लेन देन आपको करना है, देन इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मार्केट. बट ऑलवेज द शेयर्स आर टू बी फर्स्ट इश्यूड अंडर द प्राइमरी मार्केट only. So the name is primary market. So what is the use of primary market? So again it will facilitate transfer of investable funds from savers to the entrepreneurs. मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, मुझे हाई रिटर्न चाहिए और मेरे पास आइडल फंड पड़ा हुआ है, सो इट इज वन ऑफ द ऑप्शन. अगर कोई भी नई कंपनी नया शेयर्स लेके आ रही है मेरे सामने और अगर मैं उनके क्रेडिट वर्दीनेस से, उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, देन आई एम हैविंग वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू इन्वेस्ट ओवर there. So it is again channelizing the savings of the savers. Who are the investors in this market? The investors are usually the banks, financial institutions, insurance company, mutual funds and individuals. And company can raise capital through primary market. So कोई भी कंपनी को अगर capital raise करना है for longer period of time, then primary market के through they can do the task. Now how the shares are floated in the market? या प्राइमरी मार्केट में अगर आपको एंट्री करनी है कोई भी फर्म को या किसी भी तरह से एंट्री करनी है तो क्या तरीका है? सो द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ फ्लोटेशन इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस?
काफी बार आपने न्यूज़पेपर्स में दिया होगा, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है या कोई भी लोकल न्यूज़पेपर्स है, तो न्यू इशू का एक एडवर्टाइजमेंट आती है जहां पे ऑफर प्राइस क्या है, या पहले तो कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया होता है, फिर वहां लिखा होता है बिड स्टार्ट्स ऑन दिस डेट एंड क्लोजेस ऑन दिस डेट, शेयर प्राइस इज सो एंड सो, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स दैट आर अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन इज सो एंड सो। तो ये सारी चीजें क्या होती है, दे आर मेड थ्रू प्रोस्पेक्टस। सो व्हेन अ कंपनी इज डायरेक्टली अप्रोचिंग द पब्लिक to invest, or it is giving an invitation to the public to invest into the shares of the company, it is termed as offer through prospectus. So it involves inviting subscription from the public through issue of prospectus. Now what do you understand by prospectus? जैसे आपकी स्कूल की डायरीज होती है जहां पे अगर आपको स्कूल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या स्कूल के ब्रोशर्स होते हैं, तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन की क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, फीस टर्म क्या है, एकेडमिक ईयर का पैटर्न क्या है, हु आर दी स्टाफ मेंबर्स टीचिंग इन दी स्कूल्स, स्कूल का मैनेजमेंट कौन है, स्कूल कब स्टार्ट हुई थी, उसकी हिस्ट्री क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल इज अवेलेबल बिफोर यू इन दिस स्कूल ब्रोशर। सिमिलरली अगर आपको कंपनी को अपने बारे में कुछ भी बताना है लोगों को, सो इट इज डन विद द वे ऑफ prospectus. So prospectus is nothing but it is a document which is giving you full and complete information about the organization, related to what is the organization, वो फंड क्यों चाहती है, वो किस वजह से वो फंड पब्लिक के पास से रेस कर रही है, व्हाट इज द शेयर प्राइस, ये ज्यादा से ज्यादा जो भी इशू है इट इज यूजुअली ओपन फॉर द पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है, 14 दिन के लिए ये इशू ओपन हुआ होता है। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आपके सामने है, अवेलेबल है ये करने के लिए, व्हाट विल बी दी एप्लीकेशन मनी, कहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भिजवाना है, कब ये बिड क्लोज होगा, कब आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आपको शेयर्स इशू हुए हैं या नहीं, ईच एंड एवरी डिटेल। फिर व्हाट आर दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, पिछले 5 साल का क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट रहा है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, देन ये कौन से स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द फर्म इज published in the prospectus. So prospectus makes a direct appeal to the investors. तो यहाँ पे ये मेथड में सबसे मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि whenever a company is directly inviting the public to subscribe for the shares of the company, it is termed as offer through prospectus. The content of the prospectus have to be in accordance with provisions of Companies Act and SEBI disclosure and investors protection guidelines. जब भी हम कैपिटल मार्केट की बात करें या जब भी हम शेयर्स एंड सिक्योरिटी की बात करें, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ध्यान में आता है दैट विल बी सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कम्स अंडर दी आरबीआई, सिमिलरली ईच एंड एवरी कैपिटल मार्केट, जब वेदर इट बिलोंग्स टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इट कम्स अंडर दी डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ दी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी आप ये सारा काम करते हो, पब्लिक को इन्विटेशन देना, ये सारा प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, कितना डिटेल, कितने हद तक आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में लोगों को बताना है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रिस्क्राइब बाय दी सेबी एंड ऑल दिस फॉर्मेलिटी विच आर बीन प्रिस्क्राइब बाय दी सेबी। आपको मतलब कंपनी को ध्यान में रखना है कि जो भी आप प्रोस्पेक्टस में कंटेंट दे रहे हो इट शुड बी एज पर दी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर ये प्रोस्पेक्टस कभी भी लोकल पब्लिक को इशू किया जाता है, उसके पहले ये आपको सेबी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। इफ सेबी इज सेटिस्फाइड विद द कंटेंट और द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रोस्पेक्टस, देन ओनली इट गिव्स अ ग्रीन सिग्नल टू द कंपनी एंड बाद में ही ये फ्रेश मार्केट या इशू के लिए मार्केट में आता है। सो सेबी इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द कैपिटल मार्केट। The second option that is available is offer for sale. It is totally opposite of the first method, that is offer through prospectus. Offer for sale में क्या होता है कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देती है, इट इज डन थ्रू दी इंटरमीडिएटरीज। यानी यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज यूजुअली दी अंडरराइटर्स या ब्रोकर्स, दे आर ये इंटरमीडिएटरीज जो भी नाम है, जैसे यूजुअली हमने पहले चैप्टर्स में मिडलमैन सुना होगा, इंटरमीडिएटरीज है, ठीक है। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यूजुअली ये इंटरमीडिएटर्स के नाम होते हैं ब्रोकर्स या अंडरराइटर्स, जो ये शेयर्स को कंपनी से पब्लिक तक पहुंचाने का काम करता है। सो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि इंटरमीडिएटरीज फर्स्ट दे विल परचेज लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स फ्रॉम द कंपनी एट द फेस वैल्यू एंड देन बाय एडिंग सम ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन बाद में ये शेयर्स को पब्लिक के सामने बेचा जाएगा। सो यहाँ पे द कंपनी इज इन नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएटरीज। So offer for sale through intermediaries like issuing houses or stock brokers. Usually ये issuing houses जो होता है नॉर्मली एक्सिस बैंक है या आईडीबीआई बैंक। अगर आप वो प्रोस्पेक्टस को कभी भी ध्यान से देखोगे
तो वहां पे लिस्ट ऑफ अंडर राइटर्स दिया होता है जो यूजुअली एक बैंकिंग फर्म होता है. सो अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है, सो इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द इशूइंग हाउसेज ओनली. और कभी भी आप कंपनी में फोन करके नहीं पूछते हो कि भाई मेरा एप्लीकेशन रिसीव हुआ या नहीं, या मुझे शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं. एवरीथिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द ब्रोकर्स. यानी आपको आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन मनी है, दैट यू हैव टू गिव टू दी ब्रोकर्स एंड देन द अलॉटमेंट. ये जो भी एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट का प्रोसेस है, वो किस तरह से होता है, दैट इन डिटेल यू वुड बी स्टडिंग इन योर अकाउंट, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स करके एक चैप्टर है जहां पे ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, दैट विल बी एक्सप्लेन. The next option that is available before the firm is the private placement. Now private placement में क्या होता है, allotment of securities by company to institutional investors or some selected individual. यानी कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स है, जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, LIC है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है. ये जो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स है, इन्हीं लोगों को, इन्हीं बैंक्स को आप कंपनीज विल बी ऑफरिंग फॉर दिस परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. दैट इज दे आर नॉट ऑफर फॉर सेल टू दी जनरल पब्लिक. तो जब फिक्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सामने ही आप आपके शेयर्स को प्लेस करते हो, दैट इज टर्म्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. देन राइट इश्यू. राइट इश्यू का मतलब क्या है, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का. हु आर दी शेयर होल्डर्स, जो जिन्होंने फर्म में इन्वेस्ट किया है, दे विल बी बिकमिंग दी शेयर होल्डर्स ऑफ दी फर्म. नाउ सिंस दे हैव गिवन दी फंड्स टू दी कंपनी, उनका हक होता है कि शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज है, उनसे पहले कुछ हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाए. सो व्हेन the shareholders are getting the right to invest into the securities of the company, they are termed as right issue. So यहाँ पे privileges will be given to the existing shareholder. They are offered the right to buy the new shares. यानी since they are the existing shareholders, new shares कुछ कोटा होता है जो फिक्स किया जाता है existing shareholders के लिए. क्यों? बिकॉज दे उनका राइट है उन शेयर्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी पे. हैंस दे आर टर्म्ड एज राइट इश्यू. And last is EIPO. E means electronic and IPO means initial public offering. तो यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी पब्लिक को ऑफर तो हो रहा है, बट इट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन थिंग. सो व्हेन शेयर्स आर इश्यूड थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक IPO. Issue capital to public through the online system of stock exchange. This is termed as initial public offering. So, however, in this company will have it is mandatory for the company to appoint a registrar broker, ताकि वो जो भी applications को accept करने का या orders place करने का काम है, this will be done with the help of the brokers. So यहाँ पे the company जो shares issue कर रही है, they will have to apply for listing of its security. So these are the various forms of methods of flotation whenever you have to enter into the primary market. Now about the secondary market we will see tomorrow. Thank you.